नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। जम्मू कश्मीर के उरी में हुए हमले के बाद साल 2016 में सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान से बदला लिया और अब जब 14 फरवरी को पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने पुलवामा घटने को अंजाम दिया तो भारत की वायु सेना ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान से पुलवामा हमले का बदला लिया। 26 फरवरी की तड़के सुबह करीब 3:30 बजे जब हम और आप घरों में चैन की नींद सो रहे थे, हमारे जवानों ने उसी वक्त इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और जैश-ए-मोहम्मद के सैकड़ों आतंकियों को मौत की नींद सुला दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना के इस एयर स्ट्राइक की खबर पीएम मोदी के साथ करीब 7 लोगों को थी। खबरों के मुताबिक वायु सेना के जाबाज जवान जब तक पीओके और पाकिस्तान के बालाकोट में ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस नहीं लौट आए, तब तक पीएम मोदी जागते रहे। पाकिस्तान में बम बरसाकर लौटे वायु सेना के जवानों को पीएम मोदी ने बधाई भी दी। इस हमले की जानकारी पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तीनों सर्विस चीफ, दोनों खुफिया एजेंसियों आईबी और रॉ के चीफ को भी थी। खबर तो ये भी है कि इस एयर स्ट्राइक की जानकारी अजीत डोभाल ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टर को भी दी थी। आपको बता दें, भारत के 12 लड़ाकू विमान मिराज 2000 ने पाकिस्तान में घुसकर 300 से भी ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। इस हमले की जानकारी खुद बौखलाए पाकिस्तान ने दी थी। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कबूलते हुए कहा था कि भारतीय वायुसेना ने सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया है। भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई के बाद भारत में जहां जश्न का माहौल है, तो वहीं पाकिस्तानी अपनी सरकार पर जमकर गुस्सा उतार रहे हैं। Good morning, friends, and welcome to this briefing, and thank you for coming at a very short notice. I have with me the Foreign Secretary of India, Shri Vijay Gokhale, who will read out a statement. We will not take any questions after FS finishes his reading out the statement. Sir, the floor is yours. Good morning, ladies and gentlemen. On the 14th of February 2019, a suicide terror attack was conducted by a Pakistan-based terrorist organization, the Jaish-e-Mohammed, leading to the martyrdom of 40 brave Jawans of the CRPF. The Jaish-e-Mohammed has been active in Pakistan for the last 2 decades, and it is led by Masood Azhar with its headquarters in Bahawalpur. This organization, which is proscribed by the United Nations, has been responsible for a series of terrorist attacks, including on the Indian Parliament in December 2001 and the Pathankot Air Base in January 2016. Information regarding the location of training camps in Pakistan and in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir has been provided to Pakistan from time to time. Pakistan, however, denies their existence. The existence of such massive training facilities capable of training hundreds of jihadis could not have functioned without the knowledge of the Pakistan authorities. India has been repeatedly urging Pakistan to take action against the Jaish-e-Mohammed to prevent jihadis from being trained and armed inside Pakistan. Pakistan has taken no concrete action to dismantle the infrastructure of terrorism on its soil. Credible intelligence was received that the Jaish-e-Mohammed was attempting other suicide terror attacks in various parts of the country, and the Fidaiyin jihadis were being trained for this purpose. In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiyin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. Hence, this non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. The selection of the target
was also conditioned by our desire to avoid civilian casualties. The facility is located in thick forest on a hilltop, far away from any civilian presence. As the strike has taken place only a short while ago, we are awaiting further details. The government of Pakistan had made a solemn commitment in January 2004 not to allow its soil or territory under its control to be used for terrorism against India. We expect that Pakistan lives up to its public commitment and takes follow-up action to dismantle all JEM and other camps and hold the terrorists accountable for their actions. Thank you. This concludes the briefing. Thank you all for joining. We are not taking any questions. Thank you. पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के बड़े आतंकी कैंप पर भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए ऑपरेशन के बारे में अधिकृत जानकारी देने के लिए मैंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में सरकार की तरफ से गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री विजय गोयल जी तथा लगभग सभी बड़े दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुझे खुशी है कि सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में पहले भारतीय वायुसेना को बधाई दी, फिर सरकार द्वारा किए गए किसी भी आतंक विरोधी कार्रवाई के लिए हमेशा समर्थन देने का आश्वासन दिलाया और पक्ष और विपक्ष का भेद किए बिना एकजुटता का प्रदर्शन किया। देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भारत उचित समय पर, उचित जगह पर, उचित तरीके से कार्रवाई करेगा। कुछ कार्रवाई हुई है, इसका असर होना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होगा और इस तरह के आतंकवाद की घटनाओं पर रोक लगे, वही भारत चाहता है। जी सर, तीनों सेनाओं के या वायुसेना के आज अधिकारियों से आपकी सुबह बात भी हुई होगी, क्या वो इस पर ऑफिशियल अब कुछ जैसा कि कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और क्या कुछ हुआ है वो आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे? वो करेंगे, थोड़ा विस्तारित रूप में आप बता पाएं कुछ? वो करेंगे, मैं नहीं करूँगा। मैं देखिए, जो सर्विस में है, जो पूरे तरीके से जो डिटेल के अंदर जाते हैं, वो एयरफोर्स और रक्षा मंत्रालय उसके ऊपर बोले, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग हाँ जी, ये कार्रवाई पूरी हो गई या अभी और कार्रवाई होगी? देखिए, उचित तरीका, मैंने बोला ना, उचित जगह पर, उचित समय पर, उचित तरीका। उचित तरीके में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब ये प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर फैसला लेंगे कि उचित तरीके में छोटा डंडा चाहिए, बड़ा डंडा चाहिए, लाठी चाहिए, लोहे का सरिया चाहिए, वो तो डिसीजन उन्होंने लेना। सर, इमरान खान ने कहा रिटेलिएट करेगा, अभी हमने स्ट्राइक कर दिया, क्या रिटेलिएट की कोई संभावना है? अगर करे तो फिर कैसे? देखिए, हमने कार्रवाई किसी कारण से की है और उस कारण का आपको पता है। बाकी जो चीज़ भी होगी उसके लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर, मुशर्रफ का, क्योंकि आपने सुना कि कहा उन्होंने कि हम, मेरा दोस्त नहीं है लेकिन मीडिया खबरों के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अगर एक बम गिरेगा तो हम 20 पहले ही गिराने को तैयार हैं। हालांकि जवाब इसका प्रतिकार में ही आ गया, लेकिन फिर भी आपसे एक रिएक्शन मुशर्रफ का। नहीं, देखिए, ऐसा है, मुशर्रफ साहब क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, वो तो हाथ जोड़कर जिन देशों में रुके हुए हैं वहाँ पर गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे बचा लो, तो उनसे उनकी क्या बात करें? जो अपने देश का नहीं रहा वो दूसरों का क्या बात करेगा? सर, मोटा मोटी मतलब नाश्ता हो गया, लंच और डिनर का अभी वक्त कुछ तय हुआ या आने वाले दिनों में? पता नहीं। उचित कार्रवाई में सिर्फ सरकार 370 और 35 ऐसे भी कोई कार्रवाई करने वाली है क्या आने वाले दिन? भाई, उचित कार्रवाई में जो कुछ संभव होगा, जैसा कि प्रधानमंत्री जी सोचते हैं और जिस प्रकार से उसके ऊपर भारत सरकार अपना विश्लेषण करती है, वो सब कार्रवाइयाँ होंगी। सब देश के लोगों में बहुत गुस्सा था जो हमला पुलवामा में हुआ था, तो इसका मतलब उसी का बदला आप कहीं लिया गया है? देखिए,
एक बहुत स्पष्ट चीज़ कही थी प्रधानमंत्री जी ने, जो हमको छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं।